हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर जो है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है जो सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। उनके लिए क्वेश्चन सोल्यूशन जो है त्रिपान स्टडी सेंटर ने लाया है और ये आपके समक्ष एमसीक्यू भी रहेगा जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेंगे। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। त्रिपान स्टडी सेंटर ने उन क्वेश्चनों को उठाया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम नर डाल सकता है। इस पे हमने एनालाइज करना है, समझना है और हर एक पहलू पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करना है। लेकिन आपको पता है कि ये पेपर सोल्यूशन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर हियर, दैट्स इम्पोर्टेंट class 10 CBSE NCERT here. The question paper is social science here. You know that social science is a question paper here. That's important. But according to question, next question arrive here, that's important. The question here, examine the multi-pronged aspect of information technology and electronic industry. You know that is an important question for the exam view here. Examine the multi-pronged aspect of information technology and electronic industry. The electronic industry cover a wide range of products from a transistor set to television, telephone, cellular telecom, pagers, telephone exchange, radar, computers and many other equipment required by the telecommunication industry. That's in the electronic industry. Bangalore has emerged as the electronic capital of India. Bangalore has emerged as the electronic capital of India. You know that is an important question for the MCQ here. There is a electronic capital of India. There is a Bangalore has emerged electronic capital of India. Another important center of electronic goods are Mumbai, Delhi, Hyderabad, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow and Coimbatore. That's important here. A state there is electronic goods are here an important center. The 18 software technology park provide to single window service. 18 software technology park provide a single window service and high data communication facility to the software export. You know that's important. 18 software technology park provide a single window service and high data communication facility to software export. A major impact of the industry has been to employment generation. That's important. A major impact of this industry has been employment generation. It is encouraging to be now that 30% of the people employed in this sector are women. 30% here. The 30% here of people employed in the sector of women. This industry has been a major foreign exchange arena in the last 2 or 3 years because it is a fast growing business process outsourcing here, means BPO sector. That's important here. This industry has been a major foreign exchange arena in the last 2 or 3 because of fast growing business process outsourcing here. The counting growth in the hardware and software is their key to be success of IT industry in India. The
कंटिन्यूली ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज देयर की टू बी सक्सेस ऑफ IT इंडस्ट्री इन इंडिया। दैट्स इम्पोर्टेंट। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर जो है क्लास 10वीं CBSE NCERT के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का, और ये क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम व्यू से यानी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्व रखेगा क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण बातों पर जो एनालाइज किया जा रहा है। सोशल साइंस का जो है 10वीं क्लास के बच्चों के लिए क्वेश्चन काफ़ी महत्व रखता है। हमारा जो यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन जो आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन बताता है कि सूचना औद्योगिक और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के बहुआयामी पहलुओं का परीक्षण करें। यानी देखा जाए तो सूचना औद्योगिक और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बहुआयामी पहलुओं का परीक्षण करना है कि इसका हमारे देश के लिए, हमारे जो है समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण आज योगदान है। किसका? सूचना प्रौद्योगिकी का और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, पेजर टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर, दूरसंचार उद्योग के लिए आवश्यक कई अन्य उपकरणों तक जो उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यानी जितना भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करते हो, उपयोग करते हो, सारे के सारे सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों से ही हमें प्राप्त होती है। तो देखा जाए तो इसका जो है आज क्षेत्र बहुत काफ़ी विस्तार हो चुका है। बेंगलोर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। देखा जाए तो ये MCQ के अंतर्गत क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है कि कौन सा जो है राज्य भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। तो बेंगलोर जो है भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है, और कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण जो केंद्र हैं वो केंद्र है मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और कैंटरबरी। ये सारे क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक के एक महत्वपूर्ण केंद्र बने हैं, और इस केंद्र का जो है अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। और इन केंद्रों पर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान जो है काफ़ी सुविधापूर्वक बनाए जाते हैं और पूरे देश में जो है दिए जाते हैं, फैलाए जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र यहाँ बनते हैं। देखा जाए तो 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को जो है सिंगल विंडो सेवा और उच्च डाटा संचार सुविधा प्रदान करता है। कितने? 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। यहाँ पर देखा जाए भारत में कम से कम 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है जो लोगों को जो है सिंगल वीडियो सेवा और उच्च डाटा संचार सुविधा प्रदान करता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस उद्योग का बड़ा प्रभाव रोजगार सृजन पर पड़ा है। देखा जाए तो इस उद्योग के कारण जो है बहुत से लोगों को रोजगार मिल गया है, और ये उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण बन गया है। यह जानना उत्साहवर्धक है कि इस क्षेत्र में कार्यरत 30% लोग महिलाएं हैं। यानी देखा जाए तो 70% पुरुष इसमें काम कर रहे हैं और 30% महिलाएं काम कर रही। चलिए, न कम से कम आधा से कहीं 30% ही महिलाओं का योगदान इस क्षेत्र में है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये उत्साहवर्धक है। यह उद्योग अपने तेज़ी से बढ़ते बिजनेस प्रोसेस आउट प्रोसेसिंग यानी BPO क्षेत्र के कारण पिछले 2 या 3 वर्षों में एक प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक रहा है। यानी देखा जाए तो इस उद्योग के कारण जो है भारत में कई मात्रा में जो है विदेशी मुद्रा भारत में आए हैं, और इसके कारण भारत का अर्थव्यवस्था मजबूत भी हुआ है। तो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ योगदान दिया है भारतीय मुद्राओं के अंतर्गत। कहते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर निरंतर वृद्धि भारत में IT उद्योग की सफलता की कुंजी है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ने निरंतर जो है वृद्धि भारत में IT उद्योग के लिए सफलता की कुंजी यहाँ पर रखी है। तो ये IT सेक्टर जो है आज के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आने वाले समय में इसका महत्व और भी बढ़ने वाला है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन का यहाँ सिलसिला था क्वेश्चन पेपर का ख़त्म हो जाता है, और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर था जिसको त्रिपान स्टडी सेंटर ने यहाँ लाया है, और ये काफ़ी महत्व रखता है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, लिखिए। कहते हैं अगर इस क्वेश्चन है उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आने के जो है बोर्ड में संभावना है और हो सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन बेशकली घुमा दिया जाएगा लेकिन आंसर इसका यही रहेगा। कहते हैं त्रिपान स्टडी सेंटर हमेशा आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, और ये हमेशा करता ही रहेगा, चाहे आप त्रिपान स्टडी सेंटर की बात मानो चाहे न मानो। त्रिपान स्टडी सेंटर आपके लिए हमेशा सक्षम रहेगा, हर समय कार्यरत रहेगा।
अगर आपके भी मन में थोड़ा भी त्रिपाण सेंटर के लिए रिस्पेक्ट है, अगर चाहते हो कि और भी आपके लिए अच्छा से अच्छा किया जाए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो सोचना नहीं दोस्तों, समझना नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव करना है।